Yes, let us just a second. Yeah. So I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. Fine. So as you know that today is the second session of linear arrangement. Yes, if you haven't gone through my first session, first class of this arrangement session or set of classes, then I will recommend you to go back to the previous video and then continue from here. And the reason behind is that because I have discussed a good question, okay, where I have and some of the concepts which are really basic and important to start you with your this arrangement set problems. Fine. Okay. So yes, let us resume. So before going on to question again, I just want to repeat or just a recap of the last session. But yes, it's just a recap, not a detailed one. So I will again recommend you to go back and watch my previous video. Fine. You will find description, or you'll find the link of my previous video in description of this class. Fine, description of this video. And yes, if you have any doubt regarding my last sessions, last classes, or anything else regarding Pinnacle Guidance Tutorials or anything, fine, so you can mail me, okay, and you will get my mail from this description of this video. Fine. And yes, so let us resume with our concepts. Fine. Or you can comment on this video also. Okay. So yes, fine. So the concept is, yeah, direction are really very important. This is north, this is south, this is west, this is east. If you are standing on this point facing north, the left is your west, the right is your east, the behind your back is south, and you facing the north. Fine. Okay. N places away horizontally. If you say that horizontally, then it can be one type of a line. Fine. Horizontally can be two types of a line. First type of line is that a ticket counter line. ठीक है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल किसी का बैक ऑफ द हेड फेस कर रहा होगा. एंड सेकेंड टाइप ऑफ अ लाइन इज दैट यू आर सिटिंग इन अ रो. ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रो, जस्ट अ सेकेंड, when you are sitting in a row, then it's like you are facing, like suppose you sit in a class. Okay, so there's a teacher, okay, who is teaching you on the blackboard, and you all are facing towards that teacher. Okay, so these two types of arrangements that can be done. Fine. So horizontally is like, sorry, three places right. N is three places right. Matlab the two people will be there between N and M, and N will be right of M. Fine. Four places means three people between them. M will be right of N, or N will be left of M. Fine. Four places away, that means three places in between. And yes, N and M can be either M can be on left side or M can be on right side. Fine. N is immediate left of M, that means N and M, or you can say one place of left of M. Then N and M are neighbor of each other, where N is left and M is right. Fine. N is immediate right of M. This is like same as above. Fine. And the neighbor is like both M and or NM. Fine. Left, where it is like N is left of M, that means N will be somewhere on the left of M. Fine. No matter, there can be 0 people or 1 people or 200 people. N is right of M, that means
n will be right of m no matter how many people between or no people in between. Fine. So vertically, like what vertically, you can say that stories of a building is also vertical. Fine. And this vertical also represents that the ticket counter line also. Fine. So two places ahead of m, so only one person in between n and m. So n will be above m or ahead, and ahead matlab is this is the counter from where you'll take the tickets. So n यहाँ पे होगा और n और m के बीच में एक डिफरेंस आएगा. ठीक है, या फिर आप इसको एक स्टोरी मान लीजिए, 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो n यहाँ पे है और m उसके बिलो से बिलो लेवल पे है. वैसे ही n इज़ 3 प्लेसेस, तो 2 लोग उसके बीच में आएंगे और m ऊपर होगा n नीचे होगा. वैसे ही 1 प्लेस और इमीडिएट भी उस तरीके से आ जाएगा. ये सब मैं लास्ट वीडियो में सब डिटेल्ड में जा चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, बस एक रीकैप दे दे रहा हूँ सो दैट अभी वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको. यही इसका है, n प्लेसेस, n अबव m, n बिलो m कितने दिए हैं. सो यहाँ पे 100 भी आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं. सेम यहाँ पे भी है, बस ये होगा कि हमेशा m ऊपर रहेगा n के, चाहे वो एक वर्टिकल लाइन हो टिकट काउंटर की या फिर एक समझ लीजिए स्टोरी ऑफ बिल्डिंग हो. फाइन. ओके. सो यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गया यू आर सिटिंग इन अ डाइनिंग टेबल, जहाँ पे आपकी माँ एंड योर मदर एंड फादर आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और यहाँ पे यू एंड योर सिस्टर इज़ हेयर. फाइन. सो आप देखते हैं कि दे आर फेसिंग ऑन द ऑपोजिट, योर मदर एंड फादर आर फेसिंग ऑपोजिट. फाइन. एंड यू आर फेसिंग ऑपोजिट टू देम, and you and your sister are facing on the same side. so उसका जो लेफ़्ट होगा वो आपका भी लेफ़्ट होगा, और जो मम्मा पापा आपके मदर फादर का लेफ़्ट है यहाँ पे वो ऑपोजिट होगा. ठीक है, ये बिल्कुल सब मैं अच्छे से लास्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैवेंट वेंट थ्रू दी लास्ट वीडियो ऑफ दिस सेशन, नहीं ऑफ दिस अरेंजमेंट, यू शुड गो, बिकॉज उसमें मैं सब डिटेल्ड में और एक काफ़ी मैंने बेसिक मतलब समझ लीजिए वो CGL लेवल, आराम से CGL लेवल में वो मीडियम डिफ़िकल्ट लेवल है, बट वही सेम क्वेश्चन मीडियम लेवल का डिफेंस में, डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम में आ जाएगा. ठीक है, बट तो उसको एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा बेटर है उससे, तो आपका बेस स्ट्रांग होगा अगर आपने वो वाला क्वेश्चन कर रखा है. ठीक है, सो इतना ज्ञान बहुत है, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहिए. फाइन. सो ये समझ लीजिए क्वेश्चन को आपको मैं 1.5 मिनट दूंगा, 90 सेकेंड्स टू गो थ्रू द क्वेश्चन, और अगर आप लगा पाओ देन इट इज़ फाइन, वरना मैं तो सॉल्व करने के लिए हूँ. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके. सो इतना टाइम
काफ़ी है। अगर आप न्यूबी हैं, मतलब आपने न्यू स्टार्ट किया है, देन इट्स फाइन, नो इश्यूज़, हम लोग सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, उसमें था PQRST N करके, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छा सी चीज़ बताई थी। अगर वैसे दिए हैं तो आप सीधे सीधे PQRSTUV, मतलब अगर लेटर्स दिए हैं तो आप एग्जैक्टली लेटर्स यूज़ कर लो। बट यहाँ पे क्या है, एक हार्डले, एक एबॉट, एक फैनी, एक कैट, बेल, अर्ल, डैनियल, गिन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन मिलेगा 90 सेकेंड्स के लिए आंसर करने के लिए, ठीक है। और आप इतना लंबा हर का नेम लिखोगे तो फिर आप सॉल्व कब करोगे, या नेम ही लिखते रह जाओगे। तो सबका पहला लेटर ले लीजिए, HAFCBE एंड D, ठीक है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। H इज़ अहेड ऑफ E, ठीक है। हु, अब ये हु किसके लिए आया है बताइए। हु इन टर्न इज अहेड ऑफ G, हु आया है E के लिए। अगर एंड आता तो आता H के लिए, बट यहाँ पे आया हु, तो हु E के लिए आया है, ठीक है। तो H इज अहेड ऑफ E, हु इन टर्न इज अहेड ऑफ G। तो एक ऐसा लगेगा, अब E और G के बीच में कितने भी लोग आ सकते हैं, उससे हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। एबॉट इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ इमरान एंड फैनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, अब इतना तो कंफर्म है कि अगर एक लाइन लगी है तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि अब इमरान और फैनी एक ही पोजीशन दोनों लोग होंगे, आगे पीछे ही होंगे, ठीक है। तो आइदर ये हो सकता, ये तो कंफर्म है कि एबॉट पहले आएगा इमरान, E और F से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, आइदर E पहले हो F से या फिर F पहले हो E से। तो ये दो कंडीशन बन गई, ठीक है। बट हाँ, इन लोगों के बीच में कितने भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर आगे जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। सॉरी यस। F and C are neither on the first 2 positions nor in the last 4 positions, ठीक है। ये है कितने, 8 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो बोल रहा है फैनी एंड कैट नाइदर इन दी फर्स्ट 2 पोजीशंस, मतलब 1 और 2 पे दोनों F और C नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लास्ट 4 पोजीशंस, मतलब 1 2 3 4, मतलब 1 2 5 6 7 8, यहाँ पे F और C नहीं, तो F और C कहाँ आएंगे, सिर्फ 3 और 4 पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, F इज अहेड ऑफ B, ठीक है, एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन देम। यहाँ पे मतलब हो गया F वही वाला हो गया, F इज 2 प्लेसेस अहेड ऑफ B, तो वहाँ पे भी एक पर्सन होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया इन लोगों ने, कन्फ्यूजन ना हो, 1 पर्सन बिटवीन देन, मतलब F पहले है फिर B है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है F इज अहेड ऑफ B और उनके बीच में एक पर्सन है, ठीक है। सॉरी हाँ, DHF आर इन ऑड नंबर्ड पोजीशन, ठीक है। ऑड नंबर कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, एक ऑड नंबर है। ऑड को हमको इनको कंसीडर करना पड़ेगा, वो पता है कि ये सब कॉम्पोजिट नंबर है, स्टिल हमको ऑड को कंसीडर करना पड़ेगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन 4 जगह 1 3 5 7 पे DHF बैठे हुए हैं, ठीक है, DHF। अब हम ये सारे 1 to 5 क्लियर हो गया, ठीक है। और यस, अगर क्लियर नहीं हो तो नो इश्यूज़, अभी पहली क्लास है, धीमे धीमे सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मेरा मेल डिस्क्रिप्शन लिंक में है, यू कैन मेल मी योर क्वेरी एज वेल, फाइन, ओके। सो अब देखिए, हम लोग को एक ऐसी जगह से स्टार्ट करना होता है फ्रॉम वेयर हमें पता चले कि एक पॉइंट मतलब कोई एक चीज़ फिक्स हो, ठीक है। 2 टाइप्स के हमारे पास, ये एक वेरिएबल है क्योंकि इनके बीच में हमको पता नहीं ये कहाँ पे रहेंगे, ये भी वेरिएबल है पता नहीं, ये भी वेरिएबल है पता नहीं, अकेला ये भी वेरिएबल है पता नहीं, और ये भी वेरिएबल है पता नहीं। बट हम लोग को इतना पता है 3 और 5 को हम लोग मिक्स कर देंगे तो हमको ये पता है F 3 या 4 पे कहीं एक जगह आ रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है D, H और F तीनों ऑड पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो F की पोजीशन तो कंफर्म हो गई कि F 3 पे ही रहेगा,
ठीक है, दो वेरिएबल हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग को एक फिक्स मिल जाएगा। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे सेम चीज़, दो हम लोग वेरिएबल क्वेश्चंस, एक उसमें फिक्स था, एक वेरिएबल था, दोनों को कंबाइन के एक फिक्स हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल हैं बट दोनों को जब कंबाइन किया हम लोग को एक फिक्स पोजीशन मिल गई। क्या? 3 का f। कैसे? f और c 3 और 4 में आएगा, बट f यहाँ से हमको पता चलता है सिर्फ 1 3 5 7 पे आ सकता है, तो f में 3 आ गया। जब f में 3 आ गया फिर हम लोग मूव करेंगे कि 4 में c आ गया, तो हमारा ये 3 और 4 पोजीशन तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पोजीशन को देख सकते हैं। फोर्थ कैसे देख सकते हैं? f के बिलो है एक और उन दोनों के बीच में एक पोजीशन, एक ही लोग हैं, तो f के बिलो है b और उन दोनों के बीच में एक है, तो 3 4 5 हमारी फिक्स हो गई FCB। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं, अब आप ये देखें, अब हम लोग को क्या पता है कि 3 हो गया हमारा, 5 हो गया, H E और G के ऊपर है, मतलब इतना तो कंफर्म है E और H के नीचे दो लोग तो कम से कम आएंगे, H E आएगा G आएगा, बट हमारे पास पोजीशंस H के लिए कौन कौन सी हैं, क्योंकि फिफ्थ तो B खा गया। ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन है 1 और 7। ठीक है, तो 7 पे रखेंगे तो फिर H के नीचे E और G के लिए स्पेस ही नहीं है, सिर्फ एक का है, तो फिर हम लोग रख नहीं सकते। 1 पे रखेंगे तो H और E के लिए, E और G के लिए हमारे पास स्पेस आ जाएगा, तो हम लोग H को कहाँ रखेंगे? 1 पे, ना कि 7 पे। 7 पे क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 7 के बाद सिर्फ एक प्लेस खाली है और हमको चाहिए E और G एटलीस्ट 2। ठीक है, तो H आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक और चीज़ पता थी कि A F और E से ऊपर आ रहा है, और हमारा ये कंफर्म हो गया कि 1 पे H है और 3 पे F है और F से ऊपर A है। सेकेंड पॉइंट देखें, A इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ इमरान एंड फैनी। ठीक है, तो 1 हो गया और 3 पे F है, तो A कहाँ पे आएगा? A 2 पे आएगा। तो हमारे कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ओके फाइन। सो सेकेंडली, हाँ, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हमारा 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? D को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 हो गया पोजीशन फिक्स, 3 हो गया पोजीशन फिक्स, 5 हो गया, तो D के लिए हम लोग का एक ही बचता है 7, तो D हम लोग ये पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे हमको क्या पता चला है? पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग को ये पता चला है कि H के नीचे E है और E के नीचे G है। ये देखिए, हार्डले इज अहेड ऑफ इमरान, हु इन टर्न इज अहेड ऑफ जिन। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हार्डले के नीचे कौन है? E है, तो मतलब हमारा 6 पे G नहीं आ सकता, क्योंकि A 6 और 8 पे कुछ ऐसा करना है कि E ऊपर आए G नीचे आए, तो फिर 6 पे E रख देंगे, 8 पे G। हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। फाइन। अच्छा, यहाँ पे ये एक पॉइंट मिसिंग है, ये 7D होगा। ठीक है, 7D है ये, 7D। ओके, ठीक है, आगे चलें। फाइन। सो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को, हाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही, अब इस क्वेश्चन में क्या है? 6th। ठीक है, हु स्टैंड्स इन द 6th पोजीशन। अब 6th आप कैसे देखोगे? 6th 1 2 3 4 5 6, 6 का आ गई E। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? E, A इमरान। ठीक है, A इमरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हु इज बिहाइंड कैड। हु इज बिहाइंड कैड। अब बिहाइंड कैड के मतलब इसके नीचे, ये अहेड हो जाएगा, ये बिहाइंड हो जाएगा, तो कैड के पीछे या फिर बिहाइंड कौन है? बी। बी कौन है? बेल। तो आंसर क्या हो गया? सी बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन एबोट एंड इमरान। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ए और ई के बीच में कितने लोग खड़े हैं? एक एफ खड़ा हुआ है, एक सी खड़ा हुआ है, एक बी खड़ा हुआ है, तो एफ सी बी कितने लोग? 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D3, ए के नीचे FCB फिर E, ठीक है। ओके, सो एक ये मुझे सिर्फ एक स्मॉल सेशन रखना था सो दैट आपके दिमाग में एक रिटेन रहे कि आप लोग का मतलब लीनियर मैं चलाऊंगा, और लीनियर के कम से कम ऐसे मैं मतलब नॉट जस्ट लीनियर, हम लोग LRDI के कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। यस, पिनाकल गाइडेंस ट्यूटोरियल चैनल पे हम लोग 120 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सब कुछ कवर होगा, लीनियर से सर्कुलर, आपका मैट्रिक्स, और उसके बाद ट्रुथ एंड लाई, सिलेक्शन, क्यूब्स, सब कुछ कवर होगा उसमें, आपकी पूरी लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। सो यस, आपसे बस इतना ही है। प्लीज़ अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, सो दैट मैंने वो स्टार्टिंग के में बस यहाँ पे मैंने सिर्फ रिवाइज़ करवा दिया था, वहाँ पे आप अच्छे से डिटेल्ड वे में मैंने डिस्कस किया है। सो यस, वो वाली वीडियो देखना, और प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। लाइक कर देना वीडियो, क्योंकि अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, जितना ज़्यादा लाइक हो सकेगा उतना अच्छा लगता है। और शेयर कर देना सो दैट क्या होता है कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, कहाँ से पढ़ें, एग्ज़ाम भी निकालना है, तो वो लोग ये देख के वो लोग अपना इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और यस, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस मत करना, प्रेस ना करना भूलिएगा, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फाइन, सो यस, एंडिंग द वीडियो गाइस, हैप्पी लर्निंग, ओके बाय।